तो डिस्कनेक्शन रहेगा तो कहाँ से हम खुद को ढूंढ पाएंगे? खुद को ढूंढने के लिए कनेक्शन चाहिए ना। ओके, तो बहुत कम होता है। फिर हम सिग्नल पे खड़े हैं, इट्स अ रेड लाइट, स्टिल समबडी विल बी हॉकिंग कंटिन्यूअसली। आपको पाप पड़ेगा, आपको ये पड़ेगा। इतने सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते थे, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब हम इतने जोर से हॉर्न बजाते तो सोचो मतलब कितने बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, कितने ट्रीज डिस्टर्ब होते हैं, हम कितने चिड़चिड़े क्यों होते हैं ट्रैफिक से आने के बाद। वो ट्रैफिक ही नहीं, इतना शोर क्यों है, यू नो। एंड नॉइस के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। नॉइस के लिए पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट्स ओके। Noise is a new silent killer, and it's time we stop turning a deaf ear. Hello friends, a very warm welcome to Nisarg Srishti presents Shorgul, a talk show where we raise our voice for silence. If you are passionate about creating a healthier, quieter world, don't forget to subscribe to our channel. I am Neena Singh, Environmental Project Head at Nisarg Srishti Welfare Foundation, and I am delighted to bring you another impactful episode. Founded on January 11, 2023, our foundation is a non-profit dedicated to environmental conservation, human welfare, nature preservation, and education. We believe that meaningful change begins with awareness, and that's exactly what this platform is all about. Our mission is holistic, blending cultural engagement with environmental awareness to spotlight issues like noise pollution. At the forefront of our foundation stands Dr. Garima Kautekar, a dynamic founder, director, and TEDx speaker. With 2 prestigious honorary doctorates, a Doctor of Humanities in Social and Community Development, and an honorary doctorate in Philosophy and Community Development. And as a Griha Lakshmi, Mrs. India, she leads with purpose, driving change in the fields of women's rights and environmental sustainability. Equally inspiring is Sri Gaurav Kautekar, a TEDx speaker, engineer, and the innovator behind the patented solution Control Honk, a remarkable initiative to tackle noise pollution and head-on. As you know, our cities are becoming hubs of noise pollution which silently but severely impact our health, mental peace, wildlife, and the environment. Shorgul isn't just a talk show, it's a movement sparking awareness through thought-provoking conversations with voices from diverse fields. Our today's guest is our Goodwill Ambassador, Dr. Farzana Lakdawala, a visionary change maker, wellness advocate, and environmental crusader. She is a dental surgeon, founder of Dental Care Trust, and the proud recipient of numerous accolades, including Mrs. Maharashtra 2021, Griha Lakshmi Mrs. India 2023, and a place among India's 99 Achievers 2024. Dr. Farzana is at the forefront of raising awareness about the often overlooked dangers of noise pollution. Guided by the wisdom, we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. She is deeply committed to sustainability, well-being, and building a healthier future through her work in healthcare and wellness. Hello, Dr. Farzana. A very warm welcome to Nisarg Srishti Presents Shorgul. We are truly honored to have you join us today. Yeah, hi, and I'm really excited to be here. Thank you. It's an honor to be here and to be talking about this topic of noise pollution, जो मेरे heart के, it's very close to my heart. One of the reasons I joined this institution and Nisarg Srishti and Garima is because ये जो noise pollution है या overall जो भी बोलो, I have been very attracted and attached to that. So very happy to be here. Farzana, you have had a remarkable and diverse professional journey. So to begin with, could you please share a bit about yourself and your path so far? No, absolutely. और कभी-कभी मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ मेरे पाथ के बारे में, यहाँ से शुरू करूँ जहाँ से हम दोनों मिले थे या वहाँ से शुरू करूँ जहाँ से मैं अपना करियर शुरू किया था। बट आप वहीं से शुरू करिए जहाँ से आपने शुरू किया था। So मैं शुरू करती हूँ that I
डॉक्टर हूँ तो इसके लिए लेट मी टेल आई एम अ डेंटल सर्जन, एन एस्थेटिक डेंटल सर्जन. काफ़ी सारे आई प्रैक्टिस फॉर मेनी इयर्स. और फिर कुछ लगा कि नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना, मुझे और कुछ करना है. उस वजह से आई जॉइन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने एज अ लीड किया है फॉर मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स इंटरनेशनली एज वेल. और तभी भी मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे अब और कुछ करना है, क्या करूँ. एंड देन आई जॉइंड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम एन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर. और मेरा मेन रोल है टू हैव सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ इंटरनेशनली. सो आई स्ट्रेटेजाइज एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. और जब वर्ड सस्टेनेबल आता है तो इट मीन्स दैट बिजनेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को. बिजनेस नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट. So naturally मेरी ड्राइंग ही उसी तरफ थी. बट बियॉन्ड दिस, ये तो मेरा कॉर्पोरेट एक फीचर हो गया, व्हाट आई डू व्हिच मेक्स माय कोर, जहाँ से व्हाट आई एम इन द इंडस्ट्री. बट एट द कोर मैंने मेडिसिन क्यों किया था? मैंने मेडिसिन इसीलिए किया था कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फंक्शनिंग. मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे एक ह्यूमन ऑपरेट करता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बोलते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स बीइंग, ये कैसे ऑर्गन ऑपरेट करता है, जिस वजह से मैंने किया. बट एज मैं पढ़ते गई एंड ऑल, इट्स नॉट ओनली अबाउट द बॉडी. ये कॉम्प्लेक्स बीइंग सिर्फ बॉडी से ऑपरेट नहीं करता, उसके अंदर एक माइंड है, उसके अंदर एक सोल है, उसके अंदर एक स्पिरिट है. और ये चीजें साथ साथ में मिलके ऑपरेट करती है. एंड विच इज व्हाई मैं इट गॉट मी टू अ मॉडलिटी ऑफ होलिस्टिक वेलनेस, वेयर अभी मेरा एम क्या है, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, हाउ आई कैन यूज दैट एक्सपीरियंस टू हेल्प पीपल इवॉल्व मेंटली, फिजिकली, इन देयर स्पिरिट, ताकि हम भी इन्वायरमेंट को ही नहीं, यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करें. अगर हम अलाइन रहेंगे तो हमारे आसपास की चीजें अलाइन रहेगी. हम हेल्दी रहेंगे, हील रहेंगे तो हमारी फैमिली हील होगी, एक फैमिली हील होगी तो पूरा यूनिवर्स हील होगा. सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. और ये कलेक्टिव एफर्ट ने गॉट मी टू डू होलिस्टिक हीलिंग, जो अभी मैं कर रही हूँ, यूजिंग एक्सेस बार, शामनिक हीलिंग एज वेल एज अ लॉट ऑफ एनर्जी वर्क. और इस सब के कोर के बीच में मैंने एक चीज क्या नोटिस की है, पता है, कि एवरीबॉडी वांट्स दिस वन थिंग, फ्रीडम and getting back to themselves, getting back to who they are corely. और वही चीज मैंने इसी पर्पस से मैंने पैजेंट्री ज्वाइन की, जहाँ हम और आप मिले थे पैजेंट्री में. Why did I join pageantry? Because I wanted to find myself. I wanted to find my self-worth. और जैसे ही मैंने पैजेंट्री शुरू की, मैंने मिसेस महाराष्ट्र जीता, मिस गृहलक्ष्मी, मिसेस इंडिया जीता. और मैंने यही अपनी जर्नी वे सीखा कि हम बियॉन्ड ये रोल टाइटल जो भी हमको दिए गए हैं, वी एक्चुअली आर लुकिंग एट हाउ वी कैन शाइन इन आवर ओन लाइट. हमारे अंदर की क्या लाइट है, और वो पैजेंट्री ने गिवन. you might resonate to this, it helps us, bring out that light जो हमारा यूनिकनेस है, हमारा स्पेशलनेस है, जो टाइटल्स रोल्स में छुप गया कहीं पे, वो उभर के आ जाता है पैजेंट्री में. सो दैट इज वेयर आई मेट गरिमा. सो पैजेंट्री हैज बीन अ वेरी क्लोज पार्ट ऑफ माय लाइफ. सो बस यही मेरी एक जर्नी रही है. और आगे चल के मेरा यही पर्पस है कि हाउ आई कैन बी अ कंट्रीब्यूशन टू दिस world, to the universe in my own special way, where there is alignment in every area. I truly agree with you, because now we have reached a stage, age wise भी अगर हम कहें कि the society, everywhere, God, by grace of God, we got so much, and now it is time to return. मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर सके तो वो, और आपकी जो जर्नी है ना, तो आई तो फुल्ली रेजोनेट विद इट, बिकॉज मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस से आर्ट में आई, पेजेंट्री में आई, तो मतलब और जो चेंजेस आए, और सच बता रही हूँ, इतना अच्छा, मतलब जैसे साइंस में आपका भी करियर रहा होगा भाई, बीइंग अ डॉक्टर अपने आप में एक बहुत प्रिविलेज की बात है. मैं खुद बहुत अच्छे करियर में थी, बट वी लुक फॉर समथिंग एल्स. मतलब जब अंदर से कॉलिंग होती है कि कुछ और करना है, कुछ और करना है, तो वो हमें एक ऐसे रास्ते पे ले आता है कि जहाँ आज हम हैं. एंड रियली वी आर फॉर्चुनेट दैट वी गॉट सच अपॉर्चुनिटीज कि हम कर सके. We often discuss about water pollution, air pollution, but noise pollution is rarely given the same attention. So, have you ever had a personal encounter or experience with noise pollution? नॉइज पोल्यूशन, हाँ, आई थिंक सबको हुआ है ना. पर्सनल जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो अननेसेसरी की ट्रैफिक का शोरगुल होता है, एंड आई डोंट नो, समहाउ
at least I travel a lot globally. मैंने globally देखा कि horn का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत कम होता है और कभी-कभी ये बहुत फनी चीज है और ये मैंने यहाँ ही देखा है होता है कि हम सिग्नल पे खड़े हैं. It's a red light. Still somebody will be honking continuously. Yes, it is so annoying. It is so annoying. और people don't realize कि वो horn जो है वो disrupt कर रहा है environment के पीछे. Everything जीव जंतु जी रहा है. कभी अगर हम लेबोरेटरी में स्टडी करेंगे जो होता है नॉइज में वाइब्रेशंस होती है राइट, और अगर वो वाइब्रेशंस डिस्टर्ब है तो इट डज इम्पैक्ट राइट, इट इंट्रैप्स द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जब हम इतने जोर से हॉर्न बजाते हैं तो सोचो मतलब कितने बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, कितने ट्रीज डिस्टर्ब होते हैं, कितने बींग्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका खुद का बींग डिस्टर्ब होता है. हम कितने चिड़चिड़े क्यों होते हैं ट्रैफिक से आने के बाद. वो ट्रैफिक ही नहीं है, इतना शोर क्यों है एंड ये शोर में कहीं हम ना खुद को ही भूल जाते हैं, खुद की आवाज को ही भूल जाते हैं. एंड इफ आई रिलेटेड टू माय वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने एक आई वाज डूइंग इनर चाइल्ड हीलिंग और उसमें एक रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है. और एज यू गो इनटू हिप्नोसिस पता है फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज जोर से एक हॉर्न बजता है. एंड इवन आई एम इन दैट सबकॉन्शियस स्टेट दैट मेरा बॉडी totally shakes every time it hears a horn like this that. और वो imagine I sometimes I wish a horn की आवाज record नहीं हुई होती. Then that whole recording would have been so peaceful. Anyways, it was trying to teach me something, but इसलिए I think noise को हम बहुत ज़्यादा neglect करते हैं. हमको लगता है just by the way thing. And obviously water हम रोज पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, we want clean water, and then we talk about smoke. आजकल smoke के बारे में भी, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में लोग बात करने लग गए जो प्रीवियसली लोगों को मैटर नहीं करता था कि what is air quality index and people would. But noise के लिए अवेयरनेस बहुत कम है. noise के लिए people take it for granted that it's okay. जहाँ से हम आते हैं it's okay for it to be noiseful, and that's why when we come back from a vacation we say from a hilly vacation जहाँ hill station पे जा, it was so peaceful. What was peaceful over there that you don't have over here? Why can't you just create it here as well? फरजाना, आप क्या सजेस्ट करते हो? जैसे आपने मतलब इतने लर्नड हो आप, तो आप क्या और सजेशंस दे सकते हो कि हम लोग इस दिशा में काम करें? आपको पता ही है कि निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन जो है इस दिशा में काम कर रहा है, एंड यू हैव जॉइंड अस एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर अस. So how has your experience been working with the foundation and contributing to its mission so far? And I was also request that at least you give 2 suggestions so that we can implement together and make a better world. Yeah. So अभी goodwill ambassador हूँ, and it's a great honor and privilege. And जैसे मैंने बताया कि जो है consciousness का part है environment, और उस वजह से ही I kind of got attracted to this. So जब मैंने गरिमा से very first time I interacted with her about noise pollution was in Mrs. Maharashtra. हम बातें कर रहे थे and she told me ये हम initiative कर रहे हैं, and I was so excited कि भाई ऐसा भी कोई initiative होता है where you want to create awareness about noise pollution. इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना था. It was so uniquely understood concept. People talk about planting, वो भी required है, planting trees and waste pollution avoid करो, और तुम बाकी सब gas pollution avoid करो, but ये भी required है. and ये कितने लोग सोचते हैं इसके बारे में, नॉइज के बारे में. मैंने पहले भी बोला कि हम नॉइज के बारे में सोचते ही नहीं. हम सोचते हिल में जाएंगे तो पीस मिलेगा, माउंटेन्स में जाएंगे, सी पे जाएंगे, पीस मिलेगा. एंड देयर जो ट्री की आवाज है, सी की आवाज सुनाई देती है, वो हम यहाँ भी सुन सकते हैं. दैट इज व्हाई आई थॉट व्हाट गरिमा एंड निसर्ग सृष्टि एंड यू हैव टेकन अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज. अगर मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँ एज अ गुडविल एम्बेसडर, ऑब्वियसली मैं तो लोगों से बात करूंगी कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट on a level of when you're looking at healing. अगर आप बोल रहे हो मुझे हील करना है, तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपकी बॉडी की तरफ नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल यूनिवर्स की तरफ भी है, और उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है. इफ यू डू हर एक इंसान अपना छोटा स्टेप लेगा, वहां से हम बिग स्टेप्स ले पाएंगे. तो यू डू योर बिट. आप हॉर्न मत बजाओ, आप जब हो हॉर्न मत बजाओ. इफ पॉसिबल डोंट यूज लाउड स्पीकर्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड.
you know, if everybody does, जैसे मैंने बोला, एक फैमिली हील होगी तो यूनिवर्स हील होगा, यूनिवर्स हील होगा तो सब कुछ अलाइंड होगा. So you know, every family takes one baby step at a time. So one is, you know, keep talking about it, बिकॉज अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है. तो एक तो होगा क्या, हम अवेयरनेस क्रिएट करते रहे, एक जुड़ेगा तो दूसरा जुड़ेगा. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ यू नो इफेक्ट दैट विल कम टू. सो अवेयरनेस क्रिएट करते रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बच्चे आजकल के जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, दे आर मोर अवेयर. मेरे डॉटर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था अबाउट पोल्यूशन. सो उसमें बहुत बड़ा पार्ट हमने लिया था नॉइज पोल्यूशन. So whenever we are arguing in the house और थोड़ी आवाज अगर बड़ी हो जाती है तो this is noise pollution. This is noise pollution. So you know, so हम बच्चों में वो awareness create करें, क्योंकि आगे चल के उनको ही they have to lead the path, and if they are aware that noise pollution के क्या impacts है. Seriously, I don't think anybody is aware कि noise pollution के क्या impact है. अगर जब मैं निसर्ग सृष्टि को join किया, that's when I started researching the scientific aspects of, you know, noise pollution, and then I was surprised to know that a major cause of sleep deprivation comes from noise pollution. It comes from listening to being in a very chaotic sound environment. So it has a deep impact on cardiovascular system. जो blood pressure है, you know, हम बोलते हैं कि खाना ठीक से खाओ, but what about the factor that we don't see? So you know, awareness will be awareness in people like you and me, people like doctors, people like, you know, children, to understand करें कि noise pollution कितना important है. And to an effect, I think मैंने बॉम्बे में तो ऑलरेडी 2 जगहों पे बहुत बड़े बैनर नोटिस किए, and I was driving, otherwise मैं एक पिक्चर क्लिक कर देती कि देखो like avoid noise pollution. You know, हमारे गवर्नमेंट ने तो इशू किया है कि 55 डेसिबल जो दिन का वॉल्यूम होना चाहिए, रात का 45 होना चाहिए, एंड यू नो लाउड स्पीकर का ये टाइम है, बट वी शुड ऑल अडहियर टू इट. मेरा सजेशन बन जाते हैं. हाँ, अवेयरनेस इज द की. अवेयरनेस इज द की टू दिस, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना यू नो सब अवेयर होंगे. गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेशन तो बनाती है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी भी तो होती है. मतलब वी आल्सो एज अ सिटीजन वी शुड एक्सेप्ट आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड डू आवर बिट. या बिल्कुल बिल्कुल. फरजाना, बिफोर वी कंक्लूड, गिव वन लास्ट मैसेज for our audience. मैंने बहुत सारी चीजें बोली है, but I will give one message to the audience कि do your bit, अपना एक bit करो, okay? शोरगुल को कम करो, अपनी अंदर की आवाज को सुनने के लिए बाहर की आवाज को तुम कम करो, उसमें हमारे साथ जुड़ो और हमें हेल्प करो कि हम ये शोरगुल को कम कर पाए, और ताकि हम अपनी अंदर की आवाज को अच्छे से सुन पाए. Thank you, Dr. Farzana. Your insights and experience have truly been inspiring and thought-provoking, and I'm sure that whatever suggestions you have given, everyone will try to implement. और हम तो ये सोचते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारी बात से प्रभावित होता है तो हमारा तो जीवन सफल हो गया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक व्यक्ति भी हो गया तो हो गया ना. एक बोले ना, वो कौन सा डायलॉग है हिंदी में, मेरी हिंदी आई वुड नॉट से इट्स बैड, बट वो क्या कण कण समुंदर बने या व्हाटएवर, यू नो, बूंद बूंद समुंदर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और फिर समुंदर भरता है, तो हम हमारे घड़े को भरते हैं. बिल्कुल, हम अपनी कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच फरजाना. Thank you very much. It was a pleasure being here. Really nice talking to you. अच्छा लगा. If you are passionate about creating positive change in the society but unsure where to begin, join hands with us. You can contribute as a volunteer, become a Goodwill ambassador, or be a part of a core team, or simply support us through donations. Every step you take brings us closer to a quieter, healthier, and more conscious world. In the meantime, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell icon, because we have many more inspiring voices coming your way. For more information, contact at 9423088707. Thank you for watching today's episode of Shorgul. If this conversation resonated with you, please like, share and subscribe.
Let us all come together to fight noise pollution. It starts with one simple step: no honking at signals. Together, we can make a difference. Let's silence the noise for a better world. And this is Neena Singh signing off. Till we meet again, stay happy, stay healthy. Thank you.